Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are doing fine. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ. इसका टाइटल है डिज़ाइन गोल्स. आउटलाइन ऑफ द लेक्चर ऑफ टुडे इज एज फॉलोज. व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन गाइडलाइंस, software design and software life cycle, characteristics of a good design, and at the end of the lecture we will discuss the summary of the lecture. You already know that we always start with the motivational quotations of today. This gives us for thought. Not to become someone else but to be more thoroughly yourself. Law of Human Nature, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है कि आप हमेशा अपनी अपनी ज़ात, अपनी पर्सनैलिटी बने, ना कि किसी दूसरे को रिफ्लेक्ट करें. वॉट आई फियर इज़ नॉट द एनिमी स्ट्रेटजी बट आवर ओन मिस्टेक्स. वी हैव ए continual desire to communicate our feelings and yet at the same time the need to conceal them for proper social function. हमें अपनी फीलिंग्स को और अपनी डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी वक्त हम उन्हें कंसील भी कर सकें और हम उन्हें कम्युनिकेट भी कर सकें. अगर हमने ये बात सीख लेते हैं तो हम प्रॉपर सोशल फंक्शनिंग कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. What is software design? Software design is a process of problem solving and planning for a software solution. मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया कि software design is the solution of a problem. And what is architecture? All about communication. What parts are they and how do the parts fit together? The components, software components. What are the software components in our enterprise software solution and how they communicate with each other? How do they fit together? What are the guidelines for software architecture? Identify the right architecture style to decompose a complex system into its constituent elements. Choose the proper elements and connector types. Meet stakeholder requirements for quality attributes and provide proper execution tactics for efficient implementation. First of all, we have to choose a architectural style so that we can decompose software system into its components and choose connector types and how we can meet all stakeholders requirements. Think of what to do before thinking of how to do it. एक गाइडलाइन है कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड बिफोर आर्किटेक्चर एंड डिटेल डिज़ाइन वर्क इज़ डन. अगर आप अपना कोई आर्किटेक्चरल स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपनी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मैप होना है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स पे और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मैप होना है डिटेल डिज़ाइन पे. थिंक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बिफोर थिंकिंग ऑफ कंक्रीट डिज़ाइन. फर्स्ट आप एब्स्ट्रैक्शन लेवल, हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे अपने डिज़ाइंस को देखें और उसके बाद कंक्रीट लेवल पे, लोअर लेवल पे अपने डिज़ाइंस को देखें. ऑलवेज स्टार्ट विद एन एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन दैट स्पेसिफाइज इंटरफेस ऑफ कंपोनेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स. use multiple level of abstractions if necessary. Make implementation decisions based on the abstract interfaces. Think of the non-functional requirements early in the design process. When you map functional requirements to an architectural design, you should consider non-functional requirements as well. Communicate with stakeholder and document their preferences for quality attributes. Think of software reusability and extensibility as much as possible. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ नॉट फॉर वन टाइम. इट मस्ट बी रीयूजेबल, इट मस्ट बी adoptable, it must be extendable. तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज होती हैं तो आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को और उसकी डिज़ाइन को रीयूजेबल होना चाहिए, अडॉप्टेबल होना चाहिए, न्यू चेंजेस को अकामोडेट करे और एक्सटेंसिबल हो जाना चाहिए. और अगर स्केल अप होती हैं रिक्वायरमेंट्स तो वो आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन उनको अकामोडेट कर सके. Try to promote high cohesion within each element and lose conflict between
ईच एलिमेंट्स। आप लोग जानते हैं कि हाई कोहेजन और लूज कपलिंग एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हमारी डिज़ायरेबल ये है कि आपके कंपोनेंट्स एक दूसरे से हाईली कोहेसिव हों और लूजली कपल्ड हों। इफ़ a highly coherent subsystems components or module perform one sole function. It means अगर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है तो आपकी क्लास को अनरिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियर करने की ज़रूरत नहीं है। उस क्लास के अंदर जो मेथड्स इम्प्लीमेंटेड हैं वो उसी क्लास के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये जो स्लाइड आप इस वक्त देख रहे हैं काफ़ी एक्सप्रेसिव है कि आप जब सिस्टम डिज़ाइन बनाते हैं तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आपके पास आती हैं, वो ट्रांसफॉर्म होती हैं इनटू डिटेल डिज़ाइन। और डिटेल डिज़ाइन में दो तरह के डिज़ाइन है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है और डिटेल डिज़ाइन है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज़ मैप टू डिटेल डिज़ाइन एंड दिस इज़ इटरेटिव प्रोसेस। तो पता है कि डिज़ाइन वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, एक इटरेटिव प्रोसेस है। आप अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं तो आप उस डिज़ाइन को बार बार डिज़ाइन करते हैं अनटिल कि आपकी ऑल स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाए। A software product is concluded as a good software by what it offers and how well it can be used. The factors that decide the software properties are divided into 3 categories. कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो आप लोगों ने डेवलप की है बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर उस सूरत में कहलाती है जब वो जितनी सर्विसेज आपको ऑफ़र कर रही है वो उतनी ही परफॉर्मेंस के साथ उनको परफॉर्म भी कर रही हो और वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजेबल हो, यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हो और उससे बेनिफिट ले रहे हो। तो इन फैक्टर्स को 3 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस। जो नेक्स्ट स्लाइड है ये सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी है उनका ज़्यादा एक्सप्रेसिव वर्जन है। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल और मेंटेनेंस में कैटेगराइज होते हैं। ऑपरेशनल कैटेगरीज़ में जो फैक्टर्स फॉल करते हैं वो कौन कौन से हैं? बजट है, यूजेबिलिटी है, एफिशिएंसी, करेक्टनेस, फंक्शनैलिटी, डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है। बजट द सॉफ्टवेयर मस्ट नॉट एक्सीड द बजट, एलोकेटेड बजट के अंदर डेवलप होना चाहिए, मस्ट बी यूजेबल, मस्ट नॉट वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मेमोरी एंड processes. Correctness, what is intended for, it must fulfill. Functionality of the software must be met. Dependability, सॉफ्टवेयर कोहेरेंट कंपोनेंट्स कोहेरेंट हों, सिक्योर हों और सेफ हों। Transitional में when the software is moved from one platform to another, the factors deciding the software's quality are portability, interoperability, reusability and adaptability. Different operational environment में portable हो, different operating systems में easily communicate कर सकती है without producing any error, and reusable हो, उसका architecture reusable हो और उसका code reusable हो, adaptable हो new environment में without producing error, टॉलरेट कर सके एरर्स को टॉलरेट कर सके, रोबोस्ट हो और न्यू इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करे। मेंटेनेंस ना कैटेगरी, ऑल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड दैट डिस्क्राइब अबाउट हाउ वेल ए सॉफ्टवेयर हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेंटेन इटसेल्फ इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। जब भी कोई नई चेंज आए इन्वायरमेंट के अंदर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सॉफ्टवेयर में इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। तो इन कैटेगरी में जो फैक्टर्स फॉल करते हैं वो मॉड्यूलैरिटी है, कैन बी decomposed, software systems can be decomposed into modules. Maintainability can be maintained whenever it encounters changing environment, must be flexible, must be adaptable, and changes are easy to implement, and scalability ho whenever the requirements are increased, the software must have the ability to incorporate those requirements. इस स्लाइड के बाद हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और यहाँ पे हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है।
हम अपने लेक्चर को अमूमन एक बहुत अच्छे से वर्स पे कंप्लीट करते हैं। तो आज हमने चूज़ किया है इल्हामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, ज़रा सी बात थी अंदेशे अजम ने उसे बढ़ा दिया है फ़कत से दास्तां के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपने जो कंटेंट मैंने इस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है उसे अपने बुक से और नेट से पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर और क्रिस्प बनाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।